Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss a very important essay by a well-known revolutionary leader Bhagat Singh. The title is Why I Am an Atheist. So let's begin. The context is Bhagat Singh was trying to write this essay in order to explain to his fellow revolutionaries and the world why he was an atheist or a non-believer. तो वो ये प्रूव करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि वो एथिस्ट इसलिए हैं क्योंकि उनका एक अनड्यू प्राइड है या अहंकार है जो जिसका जिक्र वो अपने ऐसे में भी करते हैं डायरेक्टली. तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऐसे इज he was accused of being an atheist out of vanity, that is, excess of undue pride in one's self. तो वो इस बात को नकारते हैं ये कहते हुए कि अगर उनके पास वैनिटी होती या अनडू प्राइड होता तो दो प्रकार से हो सकता था एथिस्ट बनने के लिए. एक तो वन हु कॉन्सिडर्स वन सेल्फ एज अ राइवल टू गॉड, जो इंसान खुद को भगवान का प्रतिपक्षी मानता है, या फिर वह इंसान जो खुद को भगवान ही मानता होगा, खुद ही भगवान मानता होगा. ऐसे दो प्रकार के लोग हो सकते हैं वेनिटी के कारण. लेकिन भगत सिंह ये आर्ग्यू करते हैं कि दोनों केसेस में एथिज्म इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज इन बोथ द केसेस one is believing in God. That means one understands that there is God, God exists. It is just that he is trying to compete with God, or he considers himself as God. So he is not an atheist in that both of these cases. Moving forward, he says that he has been accused that because वो बहुत पॉपुलर हो गए थे दिल्ली और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केसेस में. दिल्ली में जब उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बॉम्ब फेंका था, और लाहौर में सॉन्डर्स के केस में, तो लाइफ इवेंट्स वो जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि उनके लाइफ इवेंट्स कभी एथिज्म को इन्वॉल्व भी नहीं किया. बचपन में जब वो डीएवी स्कूल में गए तब आर्य समाजिस्ट के साथ रहे, और उनके फादर का भी इन्फ्लुएंस एक प्रकार से रिलीजियस ही था, जो उन्हें एडवाइस करते थे प्रेयर करने के लिए. एंड व्हेन ही वेंट टू नेशनल कॉलेज आल्सो, he was not that a staunch follower, but he did believe in the existence of God. And even when he entered the revolutionary circle, there also he was asked by one of his followers to pray whenever he got time. And he also gives examples of the Kakori conspiracy case in 1925, when leaders like Ram Prasad Bismil or Ashfaqullah Khan, all these people, when they were arrested, Rajendra Lahiri, they spent last days of their life when they were sentenced to death in prayer only. So his revolutionary friends are also believers, believed in the existence of God. But when he tried to study the non-believers or the atheist, he was in a way inspired. He studied Bakunin, Marx, Lenin, Trotsky. All of these people were atheists. So when he was arrested in 1927, and he was threatened of imminent death कि आपको हैंग किया जा सकता है, तो that was his real test according to him, when he said that in spite of imminent death he didn't give up his atheism. Once he believed that God is not existent, he didn't give up his atheism and took a strong stand of it. सो तब वो बोलते हैं अपने ऐसे में कि वेन एवर अ पर्सन गोज अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड्स और सेट ट्रेडिशंस जो बहुत सालों से फॉलो किए गए हैं, तो उसे एक रेनिगेट माना जाता है, या एक प्रकार से एक रिबेल माना जाता है. सो he wanted to go with the decision of reason, because he said that philosophy is the outcome of human weakness. This was one of the statement by one of his revolutionaries, which he thinks was right. Now he believed that philosophy, जो हम भगवान का कॉन्सेप्शन मानते हैं, उनके हिसाब से ये एक लीजरली एक्टिविटी थी जो हमारे पूर्वज किया करते थे, जिससे
बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ आ गए। वो पॉइंट आउट करते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स अपना अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं भगवान के बारे में, जो कि इसलिए है क्योंकि जो प्रोपोगेटर्स रिलीजन के उनका अपना अपना सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट था. So this he believed was a stagnation in the human progress because reason was not used. And therefore he said that there is a need for critical reasoning and blind faith will always be dangerous. So now he says that there is a great belief in the non-existence of a conscious supreme being, and he gives reasons for it. The first question he asks in this reasons is, why did God create earth which is full of miseries? भगवान ने इस ऐसे संसार को क्यों बनाया पहले ही स्थान में, जो कि पूरे दुख से भरा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ दुख दर्द ही है. तो वो पहला क्वेश्चन ये मोहम्मदान्स और क्रिश्चियंस के लिए इसलिए रेस करते हैं क्योंकि वो लोग रिबर्थ की थ्योरी में नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म की थ्योरी में नहीं मानते हैं, जबकि हिंदूज मानते हैं. तो वो हिंदूज का बाद में रिबर्टल करते हैं, लेकिन पहले वो बोलते हैं कि क्योंकि मोहम्मदान्स और क्रिश्चियंस नहीं मानते हैं रिबर्थ की थ्योरी में, तो वो उन्हें ये पूछते हैं कि भगवान ने अर्थ क्यों बनाया, क्या वो किसी लॉ से बंधे हुए हैं? अगर वो लॉ से बंधे हुए हैं तो भगवान नहीं है. और अगर वो उन्होंने प्लेजर के लिए अर्थ बनाया है, जैसे नीरो ने रोम को डिस्ट्रॉय किया और चंगेज़ खान ने दुनिया में दहशत फैलाई, तो अगर ऐसा है तो देन ऑल्सो ही इज़ नॉट गॉड बिकॉज ही एन्जॉयज destruction and enjoys damage because the earth is full of destruction, according to him in his essay. Now, for Hindus, he says that, of course, you believe in the theory of rebirth, that इस जन्म में हमें ऐसा जन्म इसलिए मिला क्योंकि पिछले जन्म में हमने कुछ काम किए होंगे, कर्म किए होंगे, उसके हिसाब से हमें जन्म मिला. तो भगत सिंह कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के पनिशमेंट मेथड्स होते हैं. एक होता है रिट्रीब्यूटिव मेथड, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ रिवेंज, कि जो आपने किया उसका अपोजिट मिलेगा. जैसे आपने चोरी किया तो आपका हार्ट काट दिया जाएगा. दूसरा होता है डेटरेंट मेथड, कि आपने कुछ गलत किया, उसको अगर आपको रोकने के लिए अगली बार आप ऐसा ना करें उसके लिए कुछ पनिशमेंट दिया जाए. और तीसरा होता है रिफॉर्मेटिव, कि किसी ने अगर कुछ गलत किया तो उसे सुधारा जाए ताकि सोसाइटी में उसे फिर से लिया जाए. तो भगवान किस प्रकार का पनिशमेंट मेथड यूज़ कर रहा है रिबर्थ की थ्योरी में, ऐसा वो पूछते हैं. वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत गरीब है, कास्ट और पुअर्टी के वजह से बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, सोसाइटी ने उसे बहुत ज़्यादा ऑपरेस किया है, इस कंडीशन में अगर वो कोई क्राइम करता है तो क्या भगवान उसके सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं उसे पनिशमेंट देने के पहले? ऐसे ऐसा भगत सिंह क्वेश्चन करते हैं. तो और वो भी बोलते हैं कि अगर भगवान ऑलमाइटी है, ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह मौजूद है, सब जानते हैं, तो इतना सारा जो गलत हो रहा है दुनिया में, वार हो रहा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्यों भगवान ऐसा होने दे रहे हैं? क्यों भगवान रोकते नहीं हैं ये सब चीज़ जब उनके हाथ में सब कुछ है? ये भगत सिंह आर्गुमेंट दे रहे हैं. तो वो आगे ये बोलते हैं कि because he is non-believer, he says that the answer to the origin of the life and earth is in biology. So he's believer in a scientific method of understanding. He asks his readers to read Charles Darwin's An Origin of Species for why life emerged and not to believe in that God created earth. तो वो बोलते हैं कि फिर गॉड का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों जब गॉड नहीं है? तो वो कहते हैं कि जब भी कोई इंसान कुछ ऐसा देखता है जो वो रीज़न नहीं कर पाता या समझ नहीं पाता, तो वो उसे सुप्रीम एक एंटिटी का काम मान लेता है. तो वैसे तो उन्होंने कहा है अपने ऐसे में कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान इज़ द क्रिएशन ऑफ द प्रिविलेज्ड क्लास, जो लोगों के ऊपर रूल करना चाहते थे. भगत सिंह ऐसा नहीं मानते. भगत सिंह मानते हैं कि भगवान का क्रिएशन इसलिए किया गया ताकि लोग जो है वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उन्हें फेस कर पाए, टू फेस बोल्डली ऑल ट्राइंग सिचुएशंस एंड टू रिस्ट्रेन आउटबर्स्ट इन प्रॉस्पेरिटी एज अ डिटरेंट. तो भगवान का अगर डर रहे तो इंसान अपनी हदों में रहता है, हद पार नहीं करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि भगवान उन्हें पनिश कर देंगे. तो ये है उनका रीजनिंग. So this was all about his essay. It is a short essay. We all recommend you to read it. Thank you very much. Please comment for more such videos. Happy reading.